Can you all see the textbook on your screen, students? Okay, fine. In case if anybody is not able to see, just for a moment, because if your net is slow, then it will take a little time to for the screen to appear. Okay? Now, हाँ अभी आ जाएगा. Not to worry. Okay. So our chapter is based on natural disasters. Natural disasters means those problems, those calamities which are created by nature. Okay? When nature creates problem on the earth, it is known as natural disasters. Now these natural disasters occur either because of the changes in interior of the earth or because on the surface of the earth. नाउ अगर अर्थ के इंटीरियर में कुछ चेंजेस होते हैं देन वी सफर डिजास्टर्स लाइक volcano, tsunami or earthquake. While if there are any changes in the surface of the earth, then we suffer flood, cyclone, forest fire, drought, etc. Right? Out of this, we have already learned about earthquake, volcano, tsunami, and flood. And today we are going to learn about famine or drought. Famine भी बोल सकते हो, drought भी बोल सकते हो. You can see at the bottom of your page, you have been given the picture. What happens to the surface of the earth at the time of drought? देखो कितने सारे cracks हो yes, yes, correct. So the soil becomes dry, it becomes hard, and special it is because of the loss of rainfall since so many years, and the soil total becomes barren, infertile हो जाती है. Okay, now let us see the reading part of this portion. Be ready with your classwork. Hard words है तो मैं इसमें लिखवाऊंगी. Okay, scanty rainfall. Now scanty means very less rainfall. Less नहीं, very less. तो सबसे पहला मीनिंग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है. अंडरलाइन द वर्ड स्कैंटी. अंडरलाइन नहीं, राइट द वर्ड स्कैंटी मीनिंग वेरी लेस. So scanty or very less rainfall leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. Shortage of food and water, because if water is not there, food cannot grow, right? So shortage of food and water. This condition is known as famine. The condition of famine occurs in case of scanty rainfall or no rainfall for 2 or 3 years successively. Successively means continuously. Write the next meaning. Successively meaning continuously. Write down. Successively meaning continuously. मतलब there is very less rainfall or there is no rainfall for successive 2 or 3 years, then the condition of famine occurs. The possibility of famine is less if we plant more trees. Now you know that the rain does not come for 2 or 3 years, then it results into famine. But if you grow trees, then यू विल गेट मोर रेनफॉल. तो ड्राउट या फेमाइन ऐसी जगहों पर ज्यादा होता है जहां पर ट्रीज लेस है, स्पेशली द डेजर्ट एरियाज. सो द बेस्ट थिंग टू अवॉइड फेमाइन इज yes to grow more trees, to plant more trees. तो ये भले नेचुरल डिजास्टर है, बट ह्यूमन बींग्स कैन इजीली रिड्यूस दिस नेचुरल डिजास्टर. है नेचर डिजास्टर, लेकिन अर्थक्वेक वॉल्केनो को हम रोक नहीं सकते. फेमाइन को रोकना हमारे हाथ में है, राइट? सो इफ यू ग्रो मोर ट्रीज वी कैन skip this condition of famine. Okay, any doubts anybody? Okay, then comes the cyclone. ज्यादातर राजस्थान में, बट ऐसा जरूरी नहीं है. राजस्थान में भी इफ यू प्लांट मोर ट्रीज, इफ यू सी टू इट दैट दिस रेन इज अट्रैक्टेड, देन वहां पर भी फेमाइन कम कर सकते हो आप लोग. ओके, नाउ साइक्लोन. अभी अभी रिसेंटली हमने 2-3 बार साइक्लोन के बारे में
पर्सनल एक्सपीरियंस किया अभी ताउकते, है ना, ताउकते था उसके, हाँ उसके पहले एक और था, कौन सा था? हाँ याश भी आ गया. नाउ साइक्लोन जनरली व्हाट हैपेंस दैट द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड एंड इन ऑन द वे, ऑन द ब्लो, ऑन द वे ऑफ द ब्लोइंग विंड इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन. अगर कच्चे हाउसेस है तो वो गिर जाते हैं, ट्रीज फॉल, पिलर्स फॉल एंड द डिस्ट्रक्शन हैपेंस. यू कैन अगेन सी द पिक्चर ऑफ द साइक्लोन गिवन टू यू. देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये साइक्लोन के बाद का पिक्चर है, ट्रीज व्रीज सब गिरे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड हियर देखो, द विंड इज ब्लोइंग एट सच अ हाई स्पीड, आप ट्रीज के पिक्चर पर से देख सकते हो, है ना. एंड दिस इज द डिस्ट्रक्शन. ओके, these are some of the original pictures of cyclone. Let us do the reading part. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और whirlwind. उसको साइक्लोन भी बोल सकते हो, स्टॉर्म भी बोल सकते हो, whirlwind भी बोल सकते हो. द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर. जनरली एवरी ईयर ये होता ही है. समटाइम्स इट इज ऑन अ लार्ज स्केल, समटाइम्स इट इज ऑन अ स्मॉल स्केल. द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसेस इट एवरी ईयर. ईस्टर्न कोस्ट मतलब वहां पर कौन सा वाटर बॉडी है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया? यस, इस बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वहां पर ज्यादातर साइक्लोन्स होते हैं स्पेशली एवरी ईयर. द adjacent regions also feel the effects. Adjacent मतलब नियर बाय. राइट द नेक्स्ट मीनिंग. adjacent मीन्स नियर बाय. आपको पता है कि राजकोट में कोई सी कोस्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर साइक्लोन का थोड़ा इफेक्ट होता है. वाई? बिकॉज इट इज नियर बाय टू द कोस्टल एरियाज. जामनगर, पोरबंदर वो राजकोट से नजदीक है. सो द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स when it is at its highest intensity. Intensity means speed. Write the next word, intensity, and write the meaning speed. If the speed is very high, if the intensity is very high, then the nearby areas are also affected. However, these winds affect a limited area for a limited period of time only. सिर्फ आजू बाजू के एरिया को इफेक्ट करता है और वो भी थोड़े टाइम के लिए. साइक्लोन जो है वो वोल्केनो की तरह ईयर्स और मंथ्स में नहीं चलता. राइट, सो फॉर अ स्मॉल पीरियड एंड टू अ लिमिटेड एरिया द इफेक्ट्स आर सीन. Okay, this is about cyclone. Any doubts, anybody? Okay, shall I turn the page? Intensity meaning speed. Okay, now comes one more natural disaster, and that is forest fire. Now generally you know that wood catches fire very fast. हम लोग स्पेशली फायर क्रिएट करने के लिए वुड का यूज करते हैं. और फॉरेस्ट में तो वुड के अलावा कुछ होता ही नहीं है. राइट, ऊपर से ड्राई लीव्स ऑल्सो कैच फायर वेरी फास्ट. तो कभी कभी क्या होता है कि वेन देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्रांचेस, है ना, ट्रीज में कभी कभी क्या होता है कि दो ब्रांचेस के बीच में फ्रिक्शन होता है. आई थिंक यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन. यस, फ्रिक्शन मतलब घिसना. यस, जब दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन. तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रीज के बीच में फ्रिक्शन होता है एंड इट क्रिएट्स अ स्पार्क. छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है, और अगर वो स्पार्क ड्राई लीव्स के ऊपर गिर जाता है देन द ड्राई लीव्स कैच फायर. और फिर आजू बाजू में वुड तो होता ही है. एंड दिस फॉरेस्ट फायर इट ट्रेवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड. अभी रिसेंटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन बिफोर सम 2 और 2.5 years, 2-2.5 साल पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, देर वॉज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर जिसमें मेनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ वर अफेक्टेड. ओके, सो लेट अस डू द रीडिंग पार्ट. पिक्चर में आप ऑलरेडी देख सकते हो. Friction between dry branches of trees and other factors cause forest fire.
it causes great amount of damage to the forest resources. Forest resources में generally आता है trees and animals. Okay, and the last natural disaster is a landslide. जब भी कोई भी माउंटेन का ऊपर का पार्ट या तो माउंटेन में से कोई भी बड़ा सा रॉक व्हेन इट फॉल्स डाउन नेचुरली स्लाइड करके नीचे आता है तो उसको बोलते हैं लैंड स्लाइड. तो यू कैन सी इट ओवर हियर ऑल्सो. देखो ये माउंटेन के ऊपर से गिर रहा है. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर. देखो ये आपको दिख रहा है. ये यस हिमाचल प्रदेश में. तो इससे क्या होता है कि नीचे जो भी लोग रहते हैं जो भी सेटलमेंट्स दे हैं दे आर अफेक्टेड. यू कैन सी ऑल दीज हाउसेस दे आर अफेक्टेड है ना. दिस इज नोन एज लैंड स्लाइड. ओके, लेट अस डू द रीडिंग पार्ट. रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स जो है वो ऊपर से गिरते हैं माउंटेन के ऊपर से. हाँ, लैंड. लैंड आपको पता है लैंड मतलब जमीन, रॉक्स. और स्लाइड मतलब स्लाइड करके नीचे आना. गार्डन में वो स्लाइड्स होता है ना, राइट. तो व्हेन इट फॉल्स डाउन इट क्रिएट्स डैमेजेस. लेट अस सी. The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of a mountain or cliff. Cliff मतलब hill. Mountain या तो hill. Write the next meaning. Cliff. Cliff meaning hill. या तो mountain के ऊपर से या तो hills के ऊपर से. When any rock or soil material falls down, it is known as a landslide. Two factors cause landslide: excessive rainfall or an earthquake. या तो heavy rainfall की वजह से rocks break or else because of earthquake the rocks break and they fall down. For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkan gets obstructed due to landslides. Konkan area जो कि अरेबियन सी कोस्ट पर है, महाराष्ट्र गोवा के आसपास. तो वहां पर क्या होता है जनरली हेवी रेनफॉल होता है. नाउ देयर आर मेनी प्लेटूज ओवर देयर. आई थिंक यू नो व्हाट इज द प्लेटू. ऐसे है ना. तो वेन एवर देर इज heavy rainfall, then at that time landslide occur regularly in the Konkan areas. और वहां पर रेगुलरली रेलवेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि ये रॉक्स और सॉइल जो है वो गिर के वहां पर रास्तों को ब्लॉक कर देती है, राइट. सो दिस हैपेंस ड्यू टू रेनफॉल और earthquake में भी mountain break, they fall down and create a condition of landslide. Okay, so these are some of the natural disasters. Here we end the chapter. If you have any doubts in any of the natural disasters you can ask me. Anybody? Okay, तो अभी मेरे पास एक वीडियो है लैंडस्लाइड का और एक वीडियो है साइक्लोन का. सो आई जस्ट शो देम द वीडियोज वन बाय वन. शायद इसमें से वॉइस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल में से कर रही हूँ. आई डोंट हैव अ लैपटॉप. तो इट माइट हैपन कि वीडियो का आवाज आपको नहीं आ सकता बट यू कैन सी द विजुअल्स एंड यू कैन कम टू नो दैट हाउ साइक्लोन और दिस लैंडस्लाइड अफेक्ट द अर्थ. रेडी फॉर द वीडियो ऑल ऑफ यू? ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. ओके, नाउ दिस इज द वीडियो ऑफ लैंडस्लाइड. ये शायद वॉइस नहीं आएगा बट आई थिंक यू विल बी एबल टू सी. देखो ऊपर माउंटेन में से यू कैन सी द रॉक्स फॉलिंग. कैन यू सी? ऑडियो आ रहा है? अच्छा, ऑडियो शायद नहीं आएगा बट यू कैन सी द वीडियो. ओके, सो दिस इज हाउ द लैंडस्लाइड. हाँ, आपने देखा ना वो ब्रिज भी कैसे गिर गया. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड और वो जनरली माउंटेनियस एरियाज में ज्यादा होता है ऑब्वियसली. Okay, now I'm showing you the video of a cyclone. Ready all of you? Okay, here comes the video of cyclone.